And as we focus on the Maliwal assault case, Swati Maliwal now has taken to social media to fire another attack at her party, at the Aam Aadmi Party, slamming them for defending Bibhav Kumar, who she's accused of assault. Swati Maliwal has taken to social media to say, and I quote here, "There was a time when we all came out on the streets to get justice for Nirbhaya. Today, after 12 years, we're out on the streets to save the accused who made CCTV footage disappear and formatted the phone. I wish I had used this much force for Manish Sisodia. Gee, if he had been here, maybe this kind of thing wouldn't have happened to me." So this is the latest comment made by Swati Maliwal, where she's lashed out at AAP for defending Bibhav Kumar, saying, in fact, that if Manish Sisodia was out, wasn't in jail, this wouldn't have happened to her, is what she claims. Swati Maliwal now has been going aggressively against the Aam Aadmi Party, particularly after video clips like the one you see on the left of your screens have been released by AAP to say that Maliwal has been lying, that she's an agent of the BJP. Amit Bharadwaj is joining us live from the AAP headquarters. That's where you're going to be seeing Arvind Kejriwal and a slew of AAP leaders gathering in 1 hour from now to lead a massive protest towards the BJP headquarters. Amit, let's focus first on what Swati Maliwal has said. She's questioned the Aam Aadmi Party for taking that stand where they're clearly, publicly now defending Bibhav Kumar. True, Akshata. Swati Maliwal is choosing to respond to Aam Aadmi Party's narrative on social media platform and specifically on X. And today in the morning, she has tweeted out saying that, once we fought for justice for Nirbhaya, and today, 12 years later, the party will be out on the streets to defend somebody, an accused who has gotten the CCTV footage deleted. And she has also mentioned that had we put so much of energy and effort to get Manish Sisodia out, possibly this kind of horrible incident wouldn't have happened with me in the first place. So clearly Swati Maliwal also trying to cut down the narrative of the Aam Aadmi Party, responding on the social media platforms. However, what is to be noted out here is that she is choosing not to name Aam Aadmi Party or even the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal. In fact, those close to Swati Maliwal have maintained so far in the past few days, who have been communicating with us, saying that there is no allegation against Arvind Kejriwal. So possibly even at this moment, Swati is trying to maintain her, whatever there's a possibility or hope of, getting the situation right, or keeping that relationship with Arvind Kejriwal, who has been her political guru or mentor over the years. So she's not accusing Arvind Kejriwal of any wrongdoing so far, but clearly she has hit out at Aam Aadmi Party, saying that now you will be on the even now, you're right in pointing out that Maliwal so far has never named Kejriwal. But Kejriwal in the press conference yesterday made it very clear that Bibhav Kumar being arrested is nothing but a political conspiracy. Amit, just stay with me. Let's run our viewers through some of those reactions that have come in the last 24 hours, including Arvind Kejriwal, who announced that the Aam Aadmi Party will be holding this mega jail bharo protest at the BJP headquarters today. They're going to be marching from the AAP headquarters to the BJP headquarters. They're pretty much next to each other. But even that, in all likelihood, will not be allowed, as we're seeing a massive security deployment on ground as well. Now, Kejriwal is going to be addressing the media at the AAP headquarters at 12 p.m. before kicking off this dharna, where he says all AAP MPs, MLAs will be there. Let's in fact cut across live now to Atishi, who's currently speaking. इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है। अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये साजिश है, ये इस बात से भी पता चलता है कि ये वही दिल्ली पुलिस। Apologies, a bit of a problem there with the signal coming in with Atishi's reaction. She, along with the rest of the Aam Aadmi Party, have called all of this a BJP conspiracy and questioned the statements made by Swati Maliwal. In fact, going ahead and poking holes in the comments she's made, releasing footage to say that Swati Maliwal wasn't assaulted in the manner that she claims she was. Let's get you the reactions that have come in the last few hours, including Arvind Kejriwal yesterday, where he announced that they will go ahead and lead this dharna.
केजरीवाल अपने तमाम विधायकों के साथ आज बीजेपी मुख्यालय तक मार्च करेंगे। 12 बजे ये मार्च होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी मुख्यालय के बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ से अगर तकरीबन महज आधा किलोमीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों और अपने समर्थकों के साथ 12 बजे की तरफ बीजेपी मुख्यालय की तरफ मूव करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल अनाउंसमेंट किया था कि वो अपने विधायकों के साथ गिरफ्तारी देने के लिए बीजेपी मुख्यालय जो है वो जाएंगे अपने तमाम मंत्रियों के साथ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कड़ा पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर फिलहाल जो है वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ किया गया है। तमाम अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ की तमाम टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा कई लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे तो बीजेपी मुख्यालय तक फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं वो ना पहुंच सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो अलग अलग कंपनियां जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो तैनात की गई हैं। इसके अलावा आपको तस्वीरों में हम दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर वज्र वाहन और इसके साथ साथ वाटर कैनन भी जो है वो तैनात किए गए हैं, ताकि प्रदर्शनकारी आगे की तरफ जो है वो फिलहाल ना बढ़ सके। क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री तकरीबन अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ गिरफ्तारी देने को यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जो ये मुद्दा है उस पर अब सियासत जो है वो गरमाती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस मुद्दे पर फिलहाल अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप हैं, वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय की तरफ रुख करेंगे। कैमरा पर्सन अमित बदवा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। देखिए, दिल्ली पुलिस एक केंद्र शासित एजेंसी है और जिस तरह से ईडी है, सीबीआई है, एसीबी है, उसी तरीके से दिल्ली पुलिस है। एक तरफ यही दिल्ली पुलिस है जहां पे हमारी ओलंपियन पहलवान अपनी मोलेस्टेशन की कंप्लेंट लेने के लिए जंतर मंतर पे बैठ गई और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की उनकी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कभी गिरफ्तार नहीं हुए। एक प्रधानमंत्री को, एक सिटिंग प्रधानमंत्री को सीधे एक चैलेंज देना कोई आसान बात नहीं है। वो दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो जो भावना उनके मन में है और उनके साथियों के मन में होगी, वही भावना आज आम जनता के दिल में भी है और आज उस भावना का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तो इसमें उनको अवश्य बहुत सारे लोगों का इसमें उनको समर्थन मिलेगा और अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री इसका क्या रिएक्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, धरना देना तो संजय सिंह जी के घर के बाहर दीजिए, जिन्होंने कहा था कि हाँ पिटाई हुई और कार्रवाई होगी। ये नौटंकी कोई नई नहीं है। शराब घोटाले पे ऐसे ही नहीं बोलते थे, कहते थे शराब घोटाले पे नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा जेल क्यों डाल रहे हो। और अब स्वाति मालीवाल पर नहीं बोल रहे। आप देखिए कितनी शर्म की बात है, एक औरत को पिटवाने के बाद बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरने की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको उस औरत से जाके, उस बेटी से जाके माफी मांगनी चाहिए। आपके घर में बेटी है, आपके घर में आपकी सत्कारित बीवी हैं, आपके माताजी हैं, 3 औरतें जिस घर में हों, वहां का मुख्यमंत्री इतना बेशर्मी वाले अल्फाज बोले, मुझे बहुत सुनकर लाज आ रही है और बड़ी शर्म आ रही है मुझे उनकी बात सुनकर।